बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इफ़ y of x is a differentiable function of x, then any first order ordinary differential equation can be written in the implicit form as f of x y prime equal to 0. That is, a first order differential equation must contain y prime of the unknown function y of x and may contain y itself and given functions of x. For example, यानी उसका डेरिवेटिव भी उसमें मौजूद होना चाहिए और जो y itself है वो भी उसमें मौजूद होना चाहिए. y प्राइम माइनस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 या y प्राइम प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 ये y प्राइम स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस 2x इक्वल टू 0. ये सारी की सारी इक्वेशन जो हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं. अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी पड़ेगी कि द डिफरेंशियल इक्वेशंस नीड नॉट एक्सप्लिसिटली कंटेन आइदर एक्स और वाई. फॉर एग्जांपल, अच्छा इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनको एक्सप्लिसिटली वो कंटेन करें. y प्राइम इज इक्वल टू 4, y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं in which x and y do not appear explicitly. Similarly, y prime is equal to minus y square does not explicitly contain. Implicit और explicit function आपने पीछे पढ़े होंगे. Although x is implicitly in y, which is a function of x. अच्छा, भाई इसके सोल्यूशन की बात करते हैं. थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको जिक्र करता हूँ कि आगे हम फिर इसकी एग्जांपल भी कोट करेंगे. सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन f of x y prime equal to 0 is a function y is equal to phi of x that has y prime is equal to phi dash of x and has the property that f of x phi of x phi prime of x equal to 0. यानी ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे, phi of x भी और phi prime of x भी, for all values of independent variable x for which phi is defined. For example, as can be seen by substituting that y is equal to cx square minus c square is a solution of the differential equation y prime square minus xy prime plus y equal to 0. This solution needs is a solution of the differential equation y prime square minus xy prime plus y equal to 0. This solution holds for all values of x. A solution may be defined on the entire real line or only part of the line called an interval. किसी एक इंटरवल के लिए भी, पूरी लाइन के लिए भी. ठीक है. अच्छा, thus we may say that y is equal to phi of x is a solution of f of x y prime is equal to 0 on an interval I if f of x phi prime of x is equal to 0 for all x in I. फॉर एग्जाम्पल ये आगे एक और एग्जाम्पल उसने दी हुई है. y is equal to e की पावर 2x ये सोल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन y प्राइम माइनस 2y इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, while y is equal to log x is solution of y prime is equal to 1 over x for positive x. Note that it is important to define the interval I since the differential equation does not necessarily describe the solution for all values of the independent variable. Implicit solution. Implicit solution में अगर आप बात करें, हम कहते हैं कि sometimes solution of differential equation will appear as an implicit function as h of x y is equal to c and is called an implicit solution. In contrast to an explicit solution, y is equal to phi of x
For example, x square plus y square equal to 4 defines implicitly y as a function of x, and this function is a solution of the first order differential equation y prime is equal to माइनस एक्स. अगर यहाँ से देखें इसको y की जो वैल्यू है क्या बनेगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव. इसको उसने पॉजिटिव वाले को f1x कह दिया, नेगेटिव वाले को f2x कह दिया. ये दो उसके सॉल्यूशंस हैं इक्वेशन 2 के. ठीक है, ये यहाँ पे इसने बता दिया, इसको ज़रा देखें. बोथ डिफाइंड फॉर -2 and +2. Again, the fact that both of these functions are solutions of the first order differential equation 2. अच्छा, उसके बाद है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इफ y of x is a differentiable function, then a second order differential equation can be written in the implicit form as f of x y prime y double prime equal to 0. For example, x y double prime plus x square y prime minus 2y plus 3 cos x equal to 0, and y double prime square plus y prime cube plus 3y minus x square equal to 0 are the second order differential equations. Remember that a second order differential equation must explicitly contain y double prime term, while it need not explicitly contain x, y and y prime. For example, y double prime equal to 0 equal to 10 and y double prime square equal to 4 are second order differential equation. Even though x, y और y prime जो है do not appear explicitly. The differential equation may or may not be defined for all values of the independent variable x. ज़रूरी नहीं है कि वो हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आप अलग से डिफाइन करें उसको. d2y over dx square plus x square dy over dx minus 2xy equal to sin x is defined for all values of x, while the differential equation this is defined only on intervals not containing 0, 2 or -2, where 1 over x and the term 1 over x square minus 4 are not defined. यानी इसको हमें देखना होगा कि जिस पे ये डिफाइन नहीं होता उस इंटरवल को हमने एक्सक्लूड कर दिया, बाकी सारा शामिल है इसमें. ठीक है. अच्छा, इसके अगर सोल्यूशन की बात करें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, सोल्यूशन ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर ODEs f of x y prime y double prime equal to 0 for an interval I is a function y is equal to phi of x that has y prime is equal to phi prime, y double prime is equal to phi double prime. वहाँ पे क्या था, सिंगल डेरिवेटिव तक बात थी, एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड हैज द प्रॉपर्टी दैट f of x phi of x phi prime of x phi double prime of x equal to 0 for all x in that interval I. For example, as can be seen by substitution, that y is equal to cos 2x is a solution of the differential equation this for all values of x, while y is equal to 2 over pi x square root sin x is a solution of the differential equation this पॉजिटिव इंटरवल के लिए 0 to infinity. अच्छा, इसके बाद एक सोल्यूशन होता है ट्रिवियल सोल्यूशन. वो कैसा है, इफ y is equal to 0 that is y identically equal to 0 solution of differential equation on an interval I, then y is equal to 0 is called the trivial solution. जब ऐसा सोल्यूशन होगा तो उसको हम y is equal to 0 तो उसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं. जरा इसकी एग्जांपल्स करते हैं, फिर शायद बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए. शो दैट y is equal to ax plus b over x is a solution of the differential equation x square d2 y over dx square plus dx dy over dx minus y equal to 0. The given differential equation is y is equal to ax plus b over x
आपके पास जो इसका सोल्यूशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओ एक्स। ठीक है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स तो क्या बनेगा, a माइनस बी ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वाले टर्म का जो आपने जिसको प्रूव करना है उसका डेरिवेटिव लिया। अच्छा, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी ओवर एक्स क्यूब। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें आपने इनको पुटअप करना है जी। करें तो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी टू वाई और डी एक्स की जगह पे ये टू बी ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह पे आपने पुट कर दिया ए माइनस बी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आपके पास ये जो रिलेशन है टू बी ओवर एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। सिंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड देयरफॉर द गिवन फंक्शन y इज इट्स सोल्यूशन। अब आप इसको देखें ज़रा तो ये कट जाएगा, ये 0 के इक्वल होगा, माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये माइनस के टू बी ओवर एक्स बन रहे हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर 0 आएगा। सो जो ये टर्म है, ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स, ये सोल्यूशन है इसका। इसके दोनों डेरिवेटिव आप उसमें पुटअप करेंगे तो आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ y ऑफ x, अच्छा इसकी पहले कोई और अगर एग्जांपल है तो मैं पहले वो कोट कर लेता हूँ। जी, ये एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, y इज इक्वल टू x e की 2x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 3 डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब। इनको पुट कर दें जी इस इक्वेशन में, इस वाली में पुट कर दें तो इनको सॉल्व करें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलिए इसको नेक्स्ट हम जो इनिशियल इसकी कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशंस हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।